Yes, sir. Yes. ये रहने दो, ठीक है. Now let students. Should I start? Yes, Kinjal. Okay. Good morning to one all present here. The world is full of diamonds and gems, and we are having some of them here today to build this event. I, Kinjal Vaibhav Shah, the MOC for today's session from Pune Vikasa, would like to give my heartiest welcome to all of you. On behalf of Pune branch of Vikasa of ICAI, jointly with Ahmednagar, Akola, Dhule, Goa, Jalgaon, Kolhapur, Latur, Nanded, Pimpri Chinchwad, Sangli, Satara, Solapur, and Surat branches of Vikasa of ICAI. We are glad to host the 5-day seminar on Investment Ki Pathshala, where you will be learning about basics of stock market and investment avenues, candlestick patterns, technical analysis, SIP, and derivatives, and thereby help you to manage your stipend like a pro. Today is the very first session of our series Investment Ki Pathshala, where we are going to learn about basics of stock markets and investment avenues. This informative session will be given to us by someone who is a professional trader and a skilled trainer, Mr. Bharat Lade sir. Before I tell you more about Bharat sir, I request CA Sachin Minia sir, the chairman of Pune Vikasa, to present the opening remarks for today's session. Thank you, Kinjal. I welcome you all. Good morning, friends, and I am really glad that 11 branches of Vikasa have joined this session along with us. So I welcome all of you. See, friends, as aspiring chartered accountants, you are on path that demands not only excellence in the financial management, but also a deep understanding into the dynamic world of investment. Today, we have gathered here to delve into the fascinating realm of stock market and explore its intricacies. The stock market, which is often described as the heartbeat of the global economy, holds immense importance for business, investors, and individuals alike. It is a platform where, as you all are aware, basically, that it is a platform where companies raise capital, where investors seek opportunities to grow their wealth, and where economic trends and developments are mirrored. Basically, as a future professionals in the field of finance, it is crucial for you to comprehend the working of stock market and its potential implication on various financial decisions. Basically, this program has been meticulously designed to provide you with valuable insights into the stock market, not only the basics but also the intricacies. So the program will be ranging right from fundamental concepts to advanced strategies. Our esteemed speakers who have achieved commendable success in this domain will be sharing their knowledge and experience with you. I am really happy that Bharat sir has also spared his time today in the morning, and he is over here to address you on the basics of the stock market. I encourage you to make the most of this program, absorb as much knowledge as you can, ask insightful questions, and actively participate in this discussion. The stock market is not merely a theoretical concept, it's a living, breathing entity, and that demands your attention, analysis, and adaptability. Moreover, I believe this program is not just learning technicalities, it is about fostering a growth mindset. In the world of finance, agility, perseverance, and willingness to learn are qualities that set apart exceptional professionals. So I think you all deserve to have those. And I once again, on behalf of the organizing committee, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed speaker for sharing his expertise and sparing time over here. So without further taking much of the time, I hand over this session to Kinjal to introduce our today's speaker. Over to you, Kinjal. Thank you so much, Sachin sir, for your inspiring words. It's a great pleasure for me to introduce to you all the speaker for today, Mr. Bharat Lade sir. He is a professional trader and a skilled trainer with more than 300 plus teaching experience for students, housewives, investors, professionals, traders, etc.
He is the founder of ABL Financial Services and has extensive knowledge of cash, currency, and commodity market. He has 15 years of experience in stock market extensive and 10 years of 10 years of trading experience in index, stock, currency, and commodity market. He has managed more than 300 plus client portfolio and 50 CR plus AUM. It is our honor to have you here, sir. Now I request Bharat sir to continue with this session. Thank you, Kinjal ma'am. Thank you, Sachin sir, for such a great introduction. So, friend, we will start today. Good morning, all. So, many of you heard about the stock market. Friends, English, Hindi, Marathi, all language are okay. हम लोग ये सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे, थोड़ा सा उसको मोर इजी वे में जाएंगे ताकि आप लोगों को भी उसमें इंटरेस्ट बना रहे और मुझे भी जो एक्सप्लेन करना है, जो बताना है, वो मैं कर सकूं. ठीक है? भरत भाई, जस्ट वन सजेशन, इंग्लिश एंड हिंदी में डू, क्योंकि यहाँ पे सूरत से भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं. So maybe in case if you explain few things in Marathi, they may or may not understand it. So I would request you to maybe use freely Hindi, English, whichever way you want to take it. Okay, fine. Very well, fine. No issues. ठीक है? Hello. Okay, friends. So we will start with the stock market investments. Stock market क्या है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, अभी जिस तरह से सेशंस हुए हैं, जिस तरह से कोरोना का टाइम गया, वहां पर आप लोगों ने सबने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट के बारे में सबने सुना होगा, किया होगा, किसी के फैमिली में होगा, किसी के रिलेटिव्स ने किया होगा, किसी का पैसा अच्छे से बना, किसी का बैड इंप्रेशन रहा. सो हम लोग आज देखेंगे कि स्टॉक मार्केट सच में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टूल है, हम वहां पे पैसा बना सकते हैं, कि ये एक सट्टा है. जैसे पुराने लोगों को, काफी लोगों का ये समझ है कि मतलब स्टॉक मार्केट मतलब क्या, उसमें पैसा आप लूज करते हो, पैसा वेस्ट होता है या आपको लॉस होता है. सो रियली स्टॉक मार्केट में पैसा लॉस होता है या स्टॉक मार्केट एक अच्छा इन्वेस्टिंग टूल है, हम लोग देखते हैं. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट तो बहुत अच्छे से दे ही दिया है. ठीक है, सो व्हाई इन्वेस्टमेंट का हमको जरूरत क्यों है? क्योंकि हमको हमारा पैसा ग्रो करना होता है. ठीक है, पैसा आइडियली अगर पड़ा है तो उसका कोई यूज नहीं है. ठीक है, तो पैसा ग्रो होना चाहिए, आपके रिटायरमेंट में आपको काम आना चाहिए, आपको कुछ अर्न करना है, हायर रिटर्न्स, उसके लिए आपको चाहिए कि आपके पैसे पे, आपके इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिले, आपके कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट बने. इसके लिए आपको पैसा, इन्वेस्टमेंट जरूरी है. आपके कुछ फाइनेंशियल गोल होंगे, जैसे कि आपको घर लेना है, आपको कुछ बाइंग करना है, आपको सर्टन्स आपके गोल्स अचीव करने हैं. हायर एजुकेशन से आपको आगे शादी है और आपके बच्चे होंगे इन फ्यूचर. तो आपको जो भी कुछ गोल्स है, वो आपके फाइनेंशियली गोल अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट राइट टाइम और राइट वे में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है. सो हम धीरे धीरे देखते जाएंगे कि राइट टाइम, राइट वे में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है. ठीक है, आपको कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आप खुद का प्रैक्टिस चालू करोगे, खुद का कुछ बिजनेस चालू करोगे, तो उसके लिए आपको पैसा लगेगा. ठीक है, सो अर्न रिटर्न ऑन योर आइडियल रिसोर्स, हमने वो देखा ही है. ठीक है, जनरेट अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी फॉर अ स्पेसिफिक गोल इन लाइफ. जैसे कि आप समझो, आपको अगर कहीं घूमने जाना है, कहीं वर्ल्ड टूर करना है और आपके कोई स्पेसिफिक गोल है जो आपको अचीव करना है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए. ये सब चीज करने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम हमारे गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स लाइफ में अचीव कर सकें. ठीक है, इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का सबसे बेटर टाइम होता है एज गुड एज अर्ली आप इसमें इन्वेस्टमेंट चालू करोगे, उतना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा. ठीक है, सो आप लोगों के लिए तो ये बहुत राइट टाइम है. जैसे कि आपका एज अभी बहुत कम है और आपके पास बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सको. आपका इन्वेस्टमेंट कितने से होता है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आपका इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज से हो रहा है, 5,000 से हो रहा है, 50,000 से हो रहा है, 5 लाख से हो रहा है, दैट इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट. इन्वेस्टमेंट हो रहा है अर्ली एज में, ये इंपॉर्टेंट है. क्यों बोलते हैं कि अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है? क्योंकि आपका रिस्क
लेने का कैपेसिटी ये उम्र में ज़्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपके लाइफ में बाकी की सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएगी, आपका रिस्क एपिटाइट कम होते जाएगा। सो इसलिए कहते हैं कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो आपके अर्ली एज में, उतना ज़्यादा बेटर है, उतना ज़्यादा रिटर्न आएगा और आप उतने ही फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जाओगे, ठीक है। सो अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। आप कितने अमाउंट से स्टार्ट करते हो वो मैटर नहीं करता है, आपका रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपका किसी को, अभी आप स्टूडेंट्स हो तो शायद आपको पॉकेट मनी मिलता होगा, आपके पॉकेट मनी में से भी आपने अगर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, दैट इज ऑल्सो फाइन। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट अर्ली एज से स्टार्ट किया तो उसका कंपाउंडिंग आपको कितना बेटर रिटर्न्स देगा। ये सब चीजें मैं आगे धीरे धीरे कवर करते जाऊंगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं है कि आज किया, कल किया, परसों नहीं किया, नेक्स्ट मंथ में नहीं किया, 1 साल किया, 2 साल नहीं किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रेगुलरली और वो लॉन्ग टर्म तक होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होते जाएगा वैसे वैसे आपका सम बढ़ते जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट का साइज बढ़ते जाएगा, ओके। दिस इज द रियली ग्रेट क्वेश्चन, वेयर टू इन्वेस्ट। हमने देखा इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, हमने देखा कब करना चाहिए, नाउ वी आर लुकिंग कि कहाँ करना चाहिए। सी आपके पास मेनी बकेट्स आर देयर, मेनी वेज टू इन्वेस्ट योर मनी, ठीक है। फिजिकल एसेट लाइक रियल इस्टेट, आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, फ्लैट शॉप बाय कर सकते हो, गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है। आप कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एक फाइनेंशियल एसेट होता है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट। पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग अकाउंट्स होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं, आरडी जिसे कहते हैं। इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो लाइक शेयर, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स। अब इन सब में ये दो डिफरेंट कैटेगरी हो गई है, ठीक है। और दोनों कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं स्टॉक मार्केट का सेमिनार वेबिनार दे रहा हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ शेयर्स में ही पैसा लगाना चाहिए, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बट दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप रेगुलरली रियल इस्टेट्स बाय नहीं कर सकते हो, ठीक है। गोल्ड का एक टाइम होता है जहां पे कमोडिटी बढ़ती है या कमोडिटी आपको बेटर रिटर्न्स देती है, बट वो स्टैग्नेंट्स होती है क्योंकि अभी ओपन मार्केट ट्रेडिंग कमोडिटी में होने लग गया है, तो उसके रिटर्न्स भी उसी तरह से मिलते हैं आपको, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम गोल्ड के साथ हम इंडियंस का क्या है कि हमारे इमोशनली अटैचमेंट है। हम लोग गोल्ड लेके इमीडिएटली सेल नहीं कर सकते, हम उसको ट्रेडिंग टूल की तरह नहीं यूज करते हैं। हमारे यहाँ पे होता है कि अगर गोल्ड बेचा मतलब बैंकरप्ट हो गया, मतलब उसका दिवालिया निकल गया, ठीक है। सो हमारा उसके साथ इमोशंस अटैच है गोल्ड के साथ में, ठीक है। सो गोल्ड लेना जरूरी है, बट हम लोग गोल्ड लेके रखते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको कि जो आप रेगुलरली उसके साथ ले सकते हो, बेच सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट क्या है, तो वो नीचे के फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक की एफडीज है, ठीक है। आपके पास पोस्ट ऑफिस के आरडीज होते हैं, इंश्योरेंस है, प्रोविडेंट फंड्स है, ठीक है, पेंशन फंड है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है। अब जो ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट में आपका कौन सा बेटर है, तो इसके लिए एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप कैसा लगाओगे। तो दिमाग मतलब सोचते हैं कि इट्स अ रिस्की एसेट, ठीक है, कि ये जो फाइनेंशियल एसेट्स है ये काफी रिस्की है, ठीक है, इसमें पैसा लॉस हो सकता है। म्यूचुअल फंड में पैसा, म्यूचुअल फंड के प्राइसेस कम हो सकते हैं, तो हमारा फंड निकल सकता है। फिक्स डिपॉजिट में तो हमको अच्छे से रिटर्न मिल जाता है, एटलीस्ट कुछ तो फिक्स इनकम बनता है, ठीक है। सो फिक्स डिपॉजिट आज आपका आ रहा है 5 to 6%, ठीक है। जैसे जैसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होते जाएगा वैसे वैसे फिक्स डिपॉजिट का जो भी एफडी के रेट्स है वो कम होते जाएंगे। हमने हमारे टाइम पे हमने 10-12% भी देखा था, देन 7-8% देखा है। अब आप लोगों के टाइम पे वो 5 to 6% पे आ गया, 4% तक भी चला गया था, बट ड्यू टू सम 1-1.5 साल से वापस से इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं, ठीक है। सो ये सब की वजह से अभी भी फिक्स डिपॉजिट का रेट आपको 5 to 6% मिल रहा है, ठीक है।
उसके बाद में प्रोविडेंट फंड 7.5% देता है, पेंशन फंड अराउंड उतना ही देता है। सो अब इसमें एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम लोगों को हमारे इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न्स मिलना चाहिए, राइट। सो इसका एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला ये होता है कि कोई बोलता है कि एफडी का 6% मिलता है, बहुत कम है। कोई बोलता है वो मुझे 12% देता है। कोई बोलता है बिजनेस में 18% मिलता है। कोई 24% मिलता है। बट आइडियली कितना रिटर्न्स मिलना चाहिए हम लोगों के इन्वेस्टमेंट पे? तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स। जो भी कुछ वो साल का जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन है, ये दोनों का मिलाकर जितना जितना बनता है, मतलब अभी जीडीपी कितना चल रहा है कोई बता सकता है? जीडीपी या इन्फ्लेशन का रेट? जीडीपी कुछ 7%, इन्फ्लेशन 4.9%। सो 11 से 12 दोनों का मिला के होता है 11 to 12%। सो आइडियली हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमको 12% रिटर्न आना चाहिए। ये एवरी ईयर डिफरेंट इसके नंबर्स होते हैं, तो ये बदलते जाएगा। सो कभी 12% रहेगा, कभी 15% रहेगा, कभी 14% रहेगा, कभी 10% तक भी आ सकता है। सो आइडियल रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए 12 से 15%। इतना रिटर्न हमको साल का मिलना चाहिए। दैट इज वेरी मच आइडियल रिटर्न। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को समझना चाहिए कि रियलिस्टिक गोल होना चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट पे। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि ये रातों रात आपको पैसा बना देगा या रातों रात आपका पैसा लॉस करा देगा। सो ऐसे कुछ भी नहीं है। न ये रातों रात पैसा बनाता है, न ये रातों रात पैसा डुबाता है। आप किस तरह से उसको देखते हो या आप किस तरह से उसमें इन्वेस्ट करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग वो आगे देखेंगे। अब ये दोनों जो मैंने टूल आपको बताया इन्वेस्टमेंट के, एक तो आप रियल एस्टेट या गोल्ड परचेस कर सकते हो और फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शेयर्स और इसमें। अब मैं इसका आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको कहीं घूमने जाना है या बाइक परचेस करनी है या आपको दुबई टूर करना है या यूरोप टूर करना है, तो आप ऐसा कभी सुने हो क्या कि वो मेरा पुणे में एक फ्लैट है तो मैं उसको बेच देता हूँ वो फ्लैट को एंड आई गो फॉर द दुबई ट्रिप? ऐसा नहीं हो सकता है। बट यस, अगर आपका अगर फाइनेंशियल एसेट जैसे कि हम लोगों ने बोला कि हमारे शेयर्स में या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर हम लोग इन्वेस्ट किए तो हम उसको मटेरियलाइज कर कर हम लोग टूर कर सकते हैं। या आपको जैसे आप स्टूडेंट्स लोग हो तो आपको बाइक खरीदना है या आपको रियल एस्टेट भी खरीदना है, तो भी आप आपका शेयर्स बेच के रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका टूर, आपका हॉलीडे मैनेज कर सकते हो। आप बाइक्स या आपका कोई भी जो कोई आपको कोई चीज खरीदना है वो आप खरीद सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं होता है कि हम लोग फ्लैट बेच के हमने टूर अरेंज किया या शेयर्स लिया। ठीक है। सो आपको छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट और आपको इजी लिक्विडिटी, इजी कैश अवेलेबल होने के लिए ये जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है, जो फाइनेंशियल असेट्स है, इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होना बहुत जरूरी है। रेगुलरली आप इसमें 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो। हम लोग रियल एस्टेट में वैसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आप इसमें मंथली जब भी आपके पास कुछ अमाउंट आया आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जितना चाहे आपके हिसाब से आप कर सकते हो। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, बट इसका आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट, अर्ली इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एसेट्स है फाइनेंशियल्स की, जिसमें आपको रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। एक, आपको ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। दूसरा, आपका रियलिस्टिक गोल कितना है। ठीक है, कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल असेट फाइंड आउट करना और उसमें इन्वेस्ट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका आपके एज में तो बहुत ही बेस्ट है। अब इसमें जो मैंने सेकंड इसमें फाइनेंशियल असेट्स लिए हैं, ठीक है, कि आपको फिक्स डिपॉजिट्स है और बाकी बहुत सारे हैं जैसे कि आरडी है, एफडी है। इसमें आपके क्या फॉर्मूला होना चाहिए कि किसमें कितना पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। रैंडमली हम अगर बोले कि नहीं, शेयर, कोई जो शेयर्स का काम करता होगा बोलेगा शेयर्स में डालो, जो बॉन्ड्स का करता होगा बोलेगा बॉन्ड्स में डालो, कोई एफडी बेटर बोलेगा, कोई ये बेटर बोलेगा। उसके लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। आप 100 माइनस आपका एज, 100
माइनस आपकी एज शायद से 20-22 के बीच में होगी, आई होप, ठीक है। जितना बचेगा, हम लोग कंसिडर करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि आप 22 इयर्स आपका एज है, 100 माइनस 22, जो भी 78% बचता है, तो आपको जो ये सेकेंड फाइनेंशियल असेट्स है उसमें से स्टॉक मार्केट में आपको उतना परसेंट इन्वेस्ट करना है। मतलब अगर आपको 500 रुपए इन्वेस्ट करने हैं या 100 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, तो ये सारे एसेट्स में से आपको 78% शेयर्स में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। इसका रीजन मैंने आपको पहले ही बोला, क्यों? क्योंकि आपके पास अभी रिस्क लेने का आपका एज है, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। हम लोगों के एज में जैसे कोई 40s में है, उसके लिए ऑटोमेटिकली परसेंटेज कम होता है, कोई 50s में है, 60s में है, उसके लिए ऑटोमेटिकली परसेंटेज स्टॉक मार्केट का कम हो जाता है, क्योंकि उनको रिस्क एपेटाइट कम होते जाती है, ठीक है, एज देयर एज इंक्रीजेस। सो आपका अर्ली एज में है, सो आप इसमें फाइनेंशियल एसेट्स में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चालू कीजिए। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो, आप डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने स्टार्ट करना चाहिए। कितना करना है ये एवरी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेरी, क्वेश्चंस? Yes, sir. There was a question in comment session. It was from Chaitanya. He Yes. asked, if someone is starting to invest at early age, is it advisable for them to invest in real estate? यस, डेफिनेटली, अगर आप कर सकते हो। मैंने बोला कि दोनों इन्वेस्टमेंट एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक रियल इस्टेट अल्सो, और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स जैसे बहुत सारे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से अर्ली एज में 500, 1000, 5000, 50,000 से कर सकते हैं, बट रियल इस्टेट के लिए हमको अमाउंट लैक्स में लगता है, जैसे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख हो। अगर आप लोन लेना चाहो तो आपका उतना इनकम होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आपके पास वो अमाउंट है तो आप रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप रियल इस्टेट में भी ग्रोथ कर सकते हो, ओके। सो दोनों एसेट इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि रियल इस्टेट नहीं है, बट दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। आप एवरी मंथ रियल इस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, बट आप एवरी मंथ फाइनेंशियल जो अदर असेट्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें फिर आपको फिल्टर आउट करना है कि किसमें मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, ठीक है। आपके पास एवरी मंथ 5,000 रुपीज सेविंग हो रहा है, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप रियल इस्टेट में उस तरह से कुछ कर सकते हो तो यस, यू कैन गो फॉर इट ऑल्सो, नो इशू। Oh, okay, sir. There is one more doubt from Bandana. It is how to know which stock is better. यस, वो हम लोग आगे देखेंगे, Okay. है ना, वो लोग हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जस्ट आपका इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है, तो इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, कब जरूरी है और कैसे जरूरी है, तो हम लोगों ने ये देखा, एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। सो मैं इसमें फोकस करूंगा स्टॉक मार्केट के साइड में, ठीक है। सो मैं ये नहीं कोई कमेंट कर रहा हूँ कि बाकी के इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट सच अ गुड, बाकी के इन्वेस्टमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन हर एक का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, आप कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो जैसे फाइनेंशियल एसेट्स हो गया, तो मैंने उसमें दिया कि आपने किस तरह से परसेंटेज डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। सो अगर हमारी एज है तो हम 40%, 60% रेशियो लेंगे, और ज्यादा एज में रेशियो चेंज होगा, हमको हम रिस्क कम ले सकते हैं, ठीक है। तो टूवर्ड्स हम कहाँ जाएंगे, हमको फिक्स्ड इनकम कहाँ मिल रहा है, लाइक एफडीज और पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड, ठीक है। आप लोगों के पास बहुत टाइम है, यू आर इन अर्ली 2025, सो आप यहाँ पर रिस्क ज्यादा उठा सकते हो, इसलिए आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला भी बताया कि आपका कितना परसेंट, अगर आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करना है तो आपने उसमें से कितना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, 100 माइनस योर एज, जितना बचेगा वो स्टॉक मार्केट में लगाओ, बाकी का पैसा आप बाकी फाइनेंशियल एसेट्स में लगा सकते हो, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके। So, yes, sir. There are some questions. So, should I ask them at present or at the end of session?
एंड ऑफ द सेशन ज्यादा रहेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम लोग आगे का मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है तो वो रह जाएगा। हाँ, So it is okay. better. So then we will address them at the end of the session. फाइन, यस। तो हम लोग Q&A अगर आप अलाउ करो तो हम लोग थोड़ा ज्यादा भी सेशन एक्सटेंड कर सकते हैं, तो मैं लेकिन पहले ये कवर करता हूँ। Yes, sir, definitely. थैंक यू। ठीक है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। पहले तो मैं ना इसके कुछ मिथ्स आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, आप अर्ली एज में हो तो आप है ना कोई स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया, उस पे आपको सपोज 5,000 प्रॉफिट हुआ, 10,000 प्रॉफिट हुआ, 5% हुआ, 2% हुआ। ठीक है, इससे बेटर है आपका वेल्थ क्रिएट कैसा हो रहा है, इस नजरिए से आप उसको देखो। ठीक है, वेल्थ क्रिएट कैसे होता है, आपकी वेल्थ कब क्रिएट होती है, जब आपके एसेट्स बढ़ते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट में लोगे तो 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में कैसे होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास। ठीक है, सो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते गए, स्टॉक अच्छा है तो वो रिटर्न इन फ्यूचर अच्छा ही देने वाला है। अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है और आप उतने पे ही स्टिक रह गए तो आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा। हम स्टॉक मार्केट में उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, बट स्टॉक मार्केट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया और बेहतरीन रिटर्न देता है कंपाउंडिंग में। सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को आप वेल्थ क्रिएशन के नजरिए से देखो। ठीक है, आपको जस्ट न्यूमरिक प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जगह पे आपका वेल्थ कितना क्रिएट होता है, आपका पोर्टफोलियो कितने साइज से बढ़ता है, अगर आप इस पे वर्कआउट करोगे और ये सीख जाओगे तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लिखा है कि इसको इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्यों, क्योंकि आपने एक बार अच्छे से कोई इक्विटी चूज किया, ठीक है, अच्छे से कोई स्टॉक फाइंड आउट किया, उसमें आपने इन्वेस्ट किया, सो आपको जस्ट उसको वॉच करना है, उस पर आपको कोई बाकी मेहनत नहीं लेनी है। ठीक है, जैसे हम लोगों के अदर बिजनेस होते हैं, ठीक है, हमको उस पर बहुत सा मेहनत करना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, हमको इसमें सिर्फ वॉच करना पड़ता है। ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें होती है कि एक बार स्टॉक लो छोड़ दो, लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया है मैंने, 10 साल के लिए लिया है, 5 साल के लिया है। हम लोग लेते वक्त बात करते हैं 5 साल 10 साल की, लेकिन हमारे हाथ में, हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, उसमें ऐप होता है, और हम एवरी 5 मिनट्स 2 मिनट्स वो स्टॉक का प्राइस चेक करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमको इसमें पैसा नहीं बनेगा, वो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। तो हमको हम डिसाइड करना है कि आप किस तरह के ट्रेडर या इन्वेस्टर हो। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपका एनालिसिस भी उसी तरह से चाहिए। ठीक है, और आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी भी आपको वैसे ही होना चाहिए जिस तरह से हमारी साइकोलॉजी है, जिस तरह से हमारा नेचर है, हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी वैसा ही होना चाहिए। मैं आगे आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम वेल्थ क्रिएट करते हैं, ठीक है, हमारे इस पैसिव इनकम से, तो ये हमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है। फ्रेंड्स, मैं इसका आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैं बाय एजुकेशन कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। ठीक है, जब मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करता था, मैं जॉब करता था, मैंने जब मेरा जॉब छोड़ा तो मैं प्रिंसिपल ओरेकल डीबीए की पोस्ट से मैंने रिजाइन किया, और लास्ट 10 ईयर से मैं सिर्फ मार्केट में हूँ और मैं अच्छे से सरवाइव कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये एक मेरा खुद का एग्जांपल है। अभी हम लोग यहाँ पे, इसलिए मैंने मेरे खुद का एग्जांपल दिया, बट ऐसे देर आर मेनी मोर एग्जांपल्स। ठीक है, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप आपका मेन जो भी कोई जॉब या बिजनेस आप करोगे वो छोड़ के आप स्टॉक मार्केट करो। यस, बट ये आपको पैसिव इनकम बहुत अच्छे से देगा, और ये आपको एक अच्छे से आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रिएट करके देगा। इसके लिए आपको छोटा या बड़ा जो भी कुछ अमाउंट है, उस अमाउंट से अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना ही है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आपका रिटर्न्स कैसे होना चाहिए। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करो, आप रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट क्रिएट करो, अब करो, या गोल्ड का करो, या आप और अदर फाइनेंशियल एसेट से उसका ये करो, आपको आपका इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी इतना रिटर्न आना ही चाहिए। आप चेक करो जो अभी का जो सिनारियो है रियल एस्टेट पे, आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलता है सालाना। ठीक है, अब ये गेट टैक्स बेनिफिट्स है, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे दिया है। सो हम लोग ये टॉपिक नहीं डिस्कस करते, आपको ज़्यादा बेटर है। सो आप फ्यूचर्स ये जो सब, तो टैक्स बेनिफिट कैसा होगा तो यही आप आप ही खुद उसको कैलकुलेट कर सकते हो।
ठीक है। कंपाउंडिंग, रियल स्टॉक मार्केट में जब भी आप काम करते हो तो अगर आप कंपाउंडिंग का फंडा अगर सीखते हो तो आपको इतना फैबुलस रिटर्न्स मिलेगा फ्रेंड्स, आप यू कांट बिलीव इट। ठीक है। कंपाउंडिंग अगर आप अर्ली इन्वेस्ट करते हो, आप अगर 5,000 रुपए से या 1,000 रुपए से भी स्टार्ट करते हो, 20 साल तक सिर्फ 1,000 रुपीज ही आप इन्वेस्ट करते हो, बट इन अ कंपाउंडिंग मैनर। कंपाउंडिंग मतलब आपके इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। देन आप कैलकुलेट करो, बहुत से टूल या कैलकुलेटर्स अवेलेबल है गूगल पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के लिए। इट वुड गिव यू अ फैबुलस रिटर्न्स। स्टॉक मार्केट में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको कंपाउंडिंग फॉर्मूला कैसे यूज होता है वो चेक करना ही होगा। इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आप लोगों ने रामदेव जी अग्रवाल का नाम सुना होगा, आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा, आपने डॉली खन्ना का नाम सुना होगा, केडिया। आप जो भी कोई बिग इन्वेस्टर या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर देख लीजिए, वो सब लोग विदाउट कंपाउंडिंग इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा एयूएम, इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं सकते। इट इज हाईली इम्पॉसिबल कि विदाउट कंपाउंडिंग हम लोग हमारा पैसे की इतनी अच्छे से ग्रोथ कर सके। ठीक है। ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है आपके अदर फाइनेंशियल एसेट्स और स्टॉक मार्केट में। ठीक है। आप एफडी करते हो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेशन होता है। ठीक है। आप स्टॉक मार्केट में अगर अच्छे से इन्वेस्ट करते हो, राइट टाइम एंट्री राइट टाइम एग्जिट, तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट 100% मिलेगा। कैसे, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है। इसमें से कुछ पॉइंट तो हमने डिस्कस कर ही लिए कि हमको स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना है। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि आपके अर्ली एज में आप स्मॉल अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। आपको बहुत कम टाइम लगता है। जैसे आप कोई जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो आपको पूरा टाइम देना पड़ता है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। आपको राइट स्टॉक फाइंड आउट करो उसमें एंट्री करो, इट्स जस्ट फ्यू मिनट्स मैटर। ठीक है। आप आपके पोजीशन या मतलब इन्वेस्टमेंट 2-5 मिनट में ले सकते हो और आपको उसको वॉच करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। ठीक है। लिक्विडिटी का पॉइंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि आपको अगर कुछ क्विक कहीं पे कोई चीज़ खरीदना है, जैसे मैंने आपको, आप स्टूडेंट्स हो तो बाइक का एग्जांपल दिया था, या हॉलीडे कहीं हॉलीडे के लिए जाना है आपको तो मैंने वो एग्जांपल दिया था। तो ये फास्ट कैश है, ये आपको इजी लिक्विड करके देगा आपके कैश, आपके इन्वेस्टमेंट को। सो ये एक इसका अनदर गुड एग्जांपल है। अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्या करना है, वो बहुत इजी तरीके से आप सीख सकते हो। आप लोगों के साथ तो एक बहुत मेजर एडवांटेज है, आप लोग फ्यूचर सीएज हो, आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आपको बैलेंस शीट, आपको स्टॉक्स का या कंपनी का फंडामेंटल्स, ये तो रीड करना आपके लिए बहुत ईजी है। स्टॉक कितना प्रॉफिट, कंपनी कितनी प्रॉफिट में है, कितना लिक्विड है, कितना कैश फ्लो है, पी क्या है कंपनी का, क्रेडिट स्कोर क्या है, एवरीथिंग जो भी कुछ फंडामेंटली है वो तो आप लोगों को पता ही, आप सीख ही जाओगे या सीख भी रहे होगे। ठीक है। क्योंकि आपको बैलेंस शीट ही रीड करना है कंपनी का। अगर उसके साथ आप टेक्निकल एनालिसिस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, अगर आप प्राइस एक्शन, स्टॉक का चार्ट अगर आप रीड कर सकते हो तो इट इज अ रियली वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। आप फिल्टर आउट कर सकते हो कंपनी जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है, जिसका पी, पैट, इबिटा, ये सब चीज आप रीड कर सकते हो। इसकी तरह ये सब करके आप फंडामेंटल एनालिसिस करके कंपनी के स्टॉक फिल्टर आउट कर सकते हो, और उसका प्राइस एक्शन, उसका मूवमेंट, उसका चार्ट, डिमांड सप्लाई, ये सब चीज से आप राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने, अगर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि इन्फोसिस, सबको पता है कि बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली इट्स आल्सो वेरी स्ट्रांग। जब
इन्फोसिस के प्राइसेस, इन्फोसिस के शेयर्स प्राइसेस 1800 1900 तक गए, 2000 तक गए, तब सब कोई बोल रहा था कि ये 3000 तक जाएगा स्टॉक। इट्स अ फंडामेंटली वेरी गुड कंपनी, नेक्स्ट 3 इयर्स में इसका ये रिटर्न्स रहेगा, नेक्स्ट 5 इयर्स में ये रिटर्न्स देगा, लॉन्ग टर्म 2 इयर्स में ये इन्वेस्टमेंट देगा। बट इसके साथ में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको पता चलता था कि वहां पर उसमें एंट्री इज नॉट गुड। दो अ कंपनी इज वेरी गुड बट उसका प्राइस इज नॉट गुड। तो इसमें और एक सिंपल थिंग है जो आपको एक ध्यान रखना है, बहुत अच्छी कंपनी बट हाई वैल्यूएशन पे बाय करने से कभी भी अच्छा है एवरेज कंपनी विथ अ लेसर वैल्यूएशन। आपको एक एवरेज कंपनी है फंडामेंटली, लेकिन उसका वैल्यूएशन, उसका स्टॉक का प्राइस कम है, उसमें इन्वेस्ट करो। रादर एक अच्छा कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी बट एट अ हाइयर कॉस्ट, हाइयर प्राइस, हाइयर वैल्यूएशन पे बाय करने से अच्छा। इन्फोसिस 2000 पे बाय करने से बेटर है कि इन्फोसिस 1200 पे बाय करो। वहां से स्टॉक का प्राइस 40% डाउन आया, ठीक है, एक साल भी आपका टाइम गया। फिर पब्लिक, मतलब जनरल ह्यूमन नेचर होता है कि यार मैंने स्टॉक में एंट्री किया, मैंने स्टॉक बाय किया और वहां से उसका प्राइस डाउन हो गया, स्टॉक मार्केट ही खराब है। स्टॉक मार्केट नहीं खराब है, आपको डिमांड सप्लाई, आपको प्राइस एक्शन, ये सब समझना चाहिए कि आपको एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है। जब इन्फोसिस का प्राइस 600 रुपए पे आया था तब सब डर रहे थे, तब बोल रहे थे कि वो और नीचे जाएगा, राइट। सो फियर एंड ग्रीड, आपका साइकोलॉजी, ठीक है, ये सब माइंडसेट आपको फंडामेंटल, वो तो बाय डिफॉल्ट आप लोग आपके सीए करिकुलम में सीख ही लोगे, बैलेंस शीट रीड करना, उसके साथ आपको प्राइस एक्शन, चार्ट रीडिंग ये सब सीखना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस। वो आपको हेल्प करेगा राइट टाइम पे राइट प्राइस पे एंट्री और राइट टाइम राइट प्राइस पे एग्जिट कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग, मतलब जैसे मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन हम लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे स्टॉक मार्केट में आज भी सरवाइव कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर हमको फंडामेंटल चीजें, जैसे हम लोगों ने सीखा कि बैलेंस शीट का क्या क्या पॉइंट्स ट्रेड करना है, फिर भी हम लोगों का नॉलेज उसमें बहुत कम होता है। लेकिन अगर मैं प्राइस एक्शन अच्छे से सीखूं तो भी मैं सरवाइव कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि कहाँ एंट्री करना है और कहाँ एग्जिट करना है, ठीक है। यही चीज मैंने आपको बताया कि आपके बेसिक्स, मतलब टेक्निकल के प्राइस एक्शंस के क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपका टाइम, जैसे मैंने बोला कि इन्फोसिस 2000 पे जिसने एक साल पहले एंट्री किया था आज 1200 1300 पे चल रहा है, ठीक है, उसका एक साल गया, आपके टाइम का बहुत वैल्यू है। अगर इन्फोसिस डेफिनेटली 2000 क्रॉस करेगा, 2500 जाएगा, 3000 जाएगा, वो 10 साल में 5000 भी जाएगा, ठीक है। बट हमको, हमारा टाइम जो है, मैं अगर कोई 2000 पे इन्वेस्ट करता है, एक साल के बाद उसको अगर 1200 दिखता है तो उसका मॉरल डाउन होता है, ठीक है। लेकिन कोई 1200 पे इन्वेस्ट करता है और उसको इमीडिएटली 6-8 महीने में या साल भर में 2000 दिखता है, तो वो बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट आगे भी कर सकता है, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है कि फंडामेंटल में क्या क्या आता है, टेक्निकल में क्या क्या आता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं फंडामेंटल तो आप लोग ही मास्टर हो जाओगे, हो भी गए होगे अभी तक, यू गाइस आर फ्रॉम सीए बैकग्राउंड। सो मैं थोड़ा टेक्निकल साइड्स में आपको लेके चलता हूँ, हम लोग थोड़े चार्ट्स पे डिस्कस करते हैं, चलेगा। विल शेयर सम चार्ट्स विथ यू। कितने लोगों को ये, आई होप कि काफी लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि कोरोना के बाद टेक्निकल स्टॉक मार्केट के डिस्कशन, टेक्निकल एनालिसिस काफी लोगों का हुआ ही होगा, ठीक है। सो व्हाट वी फाइंड इन हियर इन दिस चार्ट, हम लोग सिर्फ यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन फाइंड आउट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कौन से प्राइस पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कौन से प्राइस पे एंटर करना चाहिए, कौन से प्राइस पे नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपके साथ इन्फोसिस का एग्जांपल शेयर किया, मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करता हूँ। सी, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि 2000 के नियर अबाउट प्राइस आया था, वहां पर ये क्लियरली शोज कर रहा था कि यहाँ से आपको एग्जिट लेना है। उसने उसका मेजर सपोर्ट ब्रेक किया, उसके बाद वो नीचे आया
एंड सी वो एक रेंज में ट्रैप हुआ। ठीक है, कंपाउंडिंग का जो फंडा है वो भी अभी मुझे अगर टाइम अलाउ करता है तो वो मैं भी आपको यहाँ पे जितना मुझसे हो सकता है मैं बताता हूँ कि कैसे आपको रिकरिंग इन्वेस्टमेंट या कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में एंटर और एग्जिट करके लेना है। ठीक है सो ये एक रेंज में रेंज बाउंड हो गया स्टॉक, वहां से ये वापस नीचे आया। सो इसने आपको 1200 पे एंट्री दिया। ठीक है, मैं 1900 2000 पे एंटर करूँ, उससे अच्छा है कि मैं राइट टाइम एंटर करके उसको 1900 2000 तक वेट करूँ। ठीक है, टाइम वैल्यू क्या होती है मैं आपको और एक चीज से दिखाता हूँ। जो लोग बोलते हैं, ये सब एग्जांपल्स दिखाने का रीजन ये है कि जो लोग बोलते हैं कि हमने स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए कि स्टॉक कोई भी प्राइस पर लेके 5 साल छोड़ दो, उससे अच्छा है स्टॉक राइट टाइम राइट प्राइस पे एंट्री करो और 5 साल तक, अगले 5 इयर्स तक सेम स्टॉक में आप एंटर और एग्जिट करते रहो। वो एंट्री एग्जिट आपको 3 महीने में मिलेगा, 6 महीने में मिलेगा, 5 महीने में मिलेगा, कभी साल भर नहीं मिलेगा, कभी 1.5 साल तक सिंगल साइड में स्टॉक ग्रो होते रहेगा। सो हमको वो कहाँ तक एग्जिट नहीं देगा, मुझे मतलब हमको नहीं पता, वो चार्ट आपको डिफाइन करेगा। जैसे कि अभी ये इन्फोसिस का एग्जांपल मैं दे रहा था, सो इस ये यहाँ से 2020 मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ, तो इसने पहला एग्जिट दिया 2022 में। ठीक है, इसके और भी कुछ टूल्स है जहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे हमने एग्जिट लेना चाहिए था। ठीक है, सो ये इसका आखिरी सपोर्ट था 1670 रुपया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर एग्जिट लेना ही चाहिए था। देयर आर मेनी अदर वेज टू फाइंड आउट कि कहाँ पे हमको एग्जिट लेना है। ठीक है, सो जो भी कुछ मिथ्या है, जो भी कुछ मिथ है कि लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन कैसे डिफाइन होना चाहिए, सो आप शेयर में एंट्री करते वक्त नहीं बोल सकते हो कि मेरा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल का है। ठीक है, स्टॉक जब तक ग्रो कर रहा है, जब तक वो बुलिश है, तब तक आपको उसमें रहना है। वो टाइम आप जब एंट्री करोगे तब आपको नहीं पता होगा कि ये 3 महीने का है, 6 महीने का है, 10 महीने का है, 12 महीने का है, 2 साल का है, हमको नहीं पता। वो जब तक ग्रो कर रहा है तब तक हमें उसमें बने रहना है। वो ये एक सिंपल लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन हुआ है जो मैं सीखा हूँ इतने सालों में। ठीक है, मैं इसका आपको एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ और अच्छी कंपनीज के देता हूँ। मैं जो भी कुछ दूंगा आपको, जो ब्लू चिप कंपनीज है उसी के मैं एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। ठीक है, ये जो मेरे कुछ आप चार्ट्स में देख रहे होंगे, ठीक है, ये जितना रिटर्न दिया है उस लास्ट 10 इयर्स में भी जितना रिटर्न नहीं दिया होगा उतना रिटर्न ये मुझे 1.5 साल में, अगर मैं इस तरह से एंटर एग्जिट करता हूँ तो मुझे लास्ट 1 1.5 साल 2 साल में मिल गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सी टाटा मोटर्स, किसी ने लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन जिसका 5 साल 10 साल का होगा, उसने अगर ये कोई भी रेंज में अगर वो इन्वेस्ट करता है लाइक 450 500 600 के आसपास, ठीक है, टाटा मोटर्स जैसा इतना बढ़िया कंपनी का स्टॉक 600 रुपए से कंटिन्यूअसली 10 साल, ये 2016 का है, ये 2013 से है 15 से है। ठीक है, सो 2015 से 8 साल टाटा मोटर्स का स्टॉक जो 600 रुपए से था वो 70-60 रुपए पे आया। ठीक है, अब अगर मैं इस तरह से इसको एनालाइज करूँ कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो यहाँ तो मेरा 10 साल का टाइम चला गया और आज भी स्टॉक वही रेंज में है। ठीक है, यही 500 से 600 की रेंज में है, 450 से 550 की रेंज में आप बोल सकते हो। तो जो भी ये प्राइस में जिसने एंट्री किया होगा उसको तो आज 8 साल 10 साल 9 साल 7 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं मिला, बट जिसने ये कोई प्राइस एक्शन पर या यहाँ पर एंट्री किया होगा उसको अच्छा रिटर्न मिला होगा। जिसने यहाँ पर एंट्री लेके एग्जिट करके फिर से एंटर किया होगा, आपको लॉन्ग टर्म का फंडा, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, आपको लॉन्ग टर्म का फंडा मतलब एक स्टॉक लेके छोड़ना नहीं है, एक स्टॉक लेकर उसमें बार बार लॉजिकली एंट्री और एग्जिट करना चाहिए। आप 10 साल तक वही स्टॉक में काम करो, बट डिमांड और सप्लाई जैसे दिखा रहा है वैसा एंट्री और एग्जिट होना चाहिए।
ठीक है। अगर कोई निफ्टी के कंपेयर में अगर मैं इसको चेक करूं तो इसका कुछ भी रिटर्न नहीं है 10 साल 8 साल के बाद में। जहां 10 साल पहले था आज भी वही रिटर्न है, बट निफ्टी जो 10 साल पहले या 8 साल पहले था वहां से उसने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, राइट। सो हमको इस वे में फाइंड आउट करना चाहिए। अब फंडामेंटली स्टॉक बहुत अच्छे से था, इसके जो भी कोई डेप्थ थे, बैड लोन्स थे, जो भी कुछ था, जब वो प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा है हमें उसमें एंटर नहीं करना चाहिए अनलेस कि वो बुलिश या अच्छे से उसका प्राइस या उसका डिमांड बढ़ता नहीं है। सी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है डिमांड एंड सप्लाई। इसका बेटर, इससे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको कोरोना के टाइम पे था। कोरोना के टाइम पर कंपनीज बंद थी, सेल्स नहीं हो रहा था। जैसे टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं, इनके बॉयलर तक बंद हो गए थे, जो बॉयलर स्टार्ट करने में 15 दिन महीना लग जाता है, ठीक है। कंपनी के बॉयलर्स कभी बंद नहीं होते प्रोडक्शन के, ठीक है। वो बॉयलर्स बंद हो गए थे, कंपनी के प्लांट्स शट डाउन हो गए थे। इनके जो सब टाटा मोटर्स के डीलर्स है जहाँ पर भी इनके सेल्स ऑफिस होंगे वो बेल बंद हो गए थे। वो 1 साल या 1.5 साल में किसने कितनी गाड़ियां खरीदी, ठीक है। बट स्टिल आप देख सकते हो कि स्टॉक 70 रुपए से 60 रुपए से 350 रुपए तक आया। अब यहाँ पर न तो कंपनी को कोई सेल्स हो रहा है तो प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, और बाकी की चीजें कुछ वर्क नहीं करेगी, लेकिन पैसा इनफ्लो हो रहा था मार्केट में, स्टॉक बाय हो रहे थे, डिमांड बढ़ते जा रहा था। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा था वैसे वैसे स्टॉक्स के प्राइसेस भी बढ़ रहे थे। और ये स्टोरी हर एक स्टॉक के साथ में है, हर एक सेगमेंट के साथ में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं हो रहा था, वो टाइम में पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं हो रहा था, सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं हो रहा था, गोल्ड बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट था या निगेटिव था या नीचे जा रहा था, ठीक है। क्रूड के प्राइसेस, जो क्रूड ऑयल है, वो लाइफ में फर्स्ट टाइम सबने निगेटिव प्राइस देखा क्रूड का। अगर आप लोगों को पता होगा, आप में से काफी लोग वो टाइम देख रहे होंगे, उनको पता चला होगा कि क्रूड का प्राइस निगेटिव गया था। लोगों को फर्स्ट टाइम पता चला कि कमोडिटी के प्राइसेस निगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो एक ही एसेट क्लास था जहां पर पैसा आ रहा था, जहां पैसा लगा सकते थे, वो था स्टॉक मार्केट। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी बिजनेस, कंपनी ग्रोथ, कंपनी के प्रॉफिट्स, स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड। सो डिमांड एंड सप्लाई, वॉल्यूम, ये थ्योरी फंडामेंटल के साथ में स्टॉक मार्केट के लिए या स्टॉक एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सो मुझे एक्चुअली यहाँ पे टेक्निकल से ज्यादा मुझे ये आपको कन्वे करना था कि लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन आपको क्या होना चाहिए, ठीक है। अब सेम सिनारियो में मैंने आपको इन्फोसिस दिखाया जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, ठीक है। तो आपको जब स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो आपको उसमें कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड रहना है, ठीक है। एक सर्टन सप्लाई जोन में आपको एग्जिट लेना ही है, क्योंकि हमें नहीं पता स्टॉक कितना नीचे जाएगा, कितने टाइम तक नीचे जाएगा, ठीक है। हमारा ब्रेक इवन वापस कब आएगा, वी डोंट नो। बहुत से लोग बोलते हैं अरे क्या हो गया, ये तो टाटा मोटर्स है, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ही बेटर रिटर्न देता है और कंपनी इतना ग्रो कर रही है, और टाटा का स्टॉक है तो कभी नीचे जाएगा ही नहीं, हमारा तो प्राइस आएगा ही। नो डाउट कंपनी अच्छा ही है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, सब कुछ बेस्ट है, बट हमारा राइट टाइम इन्वेस्टमेंट, राइट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट हुआ है क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टाइम पर भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, आज उनका जो लॉन्ग टर्म के लिए आज भी उनका प्राइस वहीं पे ही है, इतने सालों के बाद भी, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। आप एक स्टॉक में मल्टीपल टाइम एंटर्ड रह सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस आपको और क्या देता है, तो ये आपको एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन देता है, जैसे मैंने आपको बहुत बार अभी बताया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है।
कैसे आपको प्राइस इवेल्युएट करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस में मैंने ये भी बताया कि प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम डिमांड सप्लाई से आप फ्यूचर का प्राइस पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो ऑन अ बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल वंस, ठीक है। जो भी कुछ होता है कि हिस्ट्री में कैसे स्टॉक ने परफॉर्म किया है, वो हिसाब से हम उसका फ्यूचर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल, जैसे फिनोलेक्स इंडस्ट्री है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है कंपनी, ठीक है, बट स्टिल वो एक सर्टन लिमिट से नीचे आई ही है, ठीक है। तो मैं वापस आपको चार्ट्स में लेके जाता हूँ। और एक चीज मैं यहाँ पे ना आपको कन्वे करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि जिसको भी लगता है या जिसने भी सुना होगा कि स्टॉक मार्केट मतलब एक सट्टा है, स्टॉक मार्केट में पैसा लॉस होता है, स्टॉक मार्केट इज प्योर मैथमेटिक्स एंड अ प्रोबेबिलिटी गेम। मैथ सबसे ज्यादा है इसमें कि आपको वैल्यूएशन, आपको प्राइस एक्शन, ये सब देखना चाहता है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर उसका पैसा ब्लफ नहीं करता है, वो कोई बुकी नहीं है, ठीक है। वो कोई सट्टा नहीं कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट करता है। इसके लिए उसको एफआईआई, जैसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो वो पहले स्टॉक का पूरा एनालिसिस करता है, स्टॉक पूरा फाइंड आउट करता है कि उसके क्या रिस्क है, वो उसका रिस्क एनालाइज करता है, वो उसमें ग्रोथ फाइंड आउट करता है कि इसका बिजनेस प्लान क्या है, इसका ग्रोथ क्या है, वो ये सब चीज करके उसमें पैसा लगाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट न्यूज के बेस पे फ्लो होता है। मैं ये स्ट्रांगली कमेंट करना चाहता हूँ, और मैं आपको चार्ट पे जितने चाहे उतने एग्जांपल शो करके दिखा सकता हूँ कि मार्केट के प्राइस कभी भी न्यूज बेस्ड या कोई अनसर्टन इवेंट पे डिपेंड नहीं होता है। इन्वेस्टर उसका हजारों करोड़, 500 करोड़, इतना पैसा जो बिग मनी इन्वेस्ट करता है, वो कोई अनसर्टन इवेंट्स पे डिपेंड नहीं रहता है। अगर उसका पैसा मार्केट में लगा है तो वो जब तक एग्जिट नहीं लेगा तब तक वो स्टॉक का प्राइस डाउन नहीं जाएगा। बहुत अच्छे से एग्जांपल्स में दिखाता हूँ। जैसे अगर आप सीएस हो तो आपके बहुत डे टू डे, अगर आगे नेक्स्ट टाइम अगर आप देखोगे तो कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, आपको बहुत सी बार ये देखने मिलेगा कि कंपनी का रिजल्ट्स बहुत अच्छा आया है लेकिन स्टॉक का प्राइस डाउन हुआ है। उसमें वो लोग बताते हैं कि कमेंट्री जो थी वो इस तरह से होती है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि 1000 करोड़ होगा, बट एक्सपेक्टेशन से प्रॉफिट कम हुआ है और स्टॉक का प्राइस नीचे गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहां पर इन्वेस्टर ने या ट्रेडर ने उसका पैसा एग्जिट कर लिया है, इसलिए वो स्टॉक का प्राइस नीचे आया है। इन्वेस्टर को लग रहा है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए या कुछ टाइम के लिए स्टॉक कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी, स्टॉक नहीं, कंपनी अच्छी नहीं परफॉर्म करेगी, इसका ग्रोथ कम रहेगा, उन लोगों को सब पता है, इसलिए वो वहां से पैसा निकाल लेते हैं और कई और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। जब तक उनका पैसा लगा होता है तब तक स्टॉक का प्राइस गिरता नहीं है। अगर इमीडिएटली कुछ शॉक आया, स्टॉक का प्राइस नीचे आया, तो वापस से वो सेम लेवल पर स्टॉक का प्राइस जाएगा, वहां पर आपको एग्जिट मिलेगा और उसके बाद में ही आपका प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। जब तक स्टॉक का, जब तक इन्वेस्टर या ट्रेडर है उसका प्राइस, उसका टारगेट प्राइस नहीं आता है, तब तक स्टॉक में से एग्जिट नहीं होता है। मैं आपको इसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंट वाला, टेक महिंद्रा का। आप लोग जाकर गूगल पे कर भी चेक भी कर सकते हो कि ये न्यूज़ आया था या नहीं आया था, जो भी कुछ होगा, ठीक है। ये सब हमारे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद एज अ रिटेल ट्रेडर और अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे लगा कि इट्स नियरेस्ट टू माय सप्लाई जोन, ठीक है। तो यहाँ से स्टॉक नीचे आ गया, यहाँ से नेक्स्ट डे स्टॉक 7 to 8% भागा, ठीक है, जंप किया, गैप अप किया, और इसका रीजन दिया गया था, ये 10th या 13th मार्च का न्यूज है।
कंपनी का सीईओ चेंज होने वाला है। सीईओ चेंज होगा दिसंबर 2023 में, ठीक है। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट न्यूज वो स्टॉक यहां से ऊपर गया, ठीक है। और इमीडिएटली नेक्स्ट डे वो न्यूज का असर खत्म हो गया और वो स्टॉक वहां से वापस नीचे आया, ठीक है, उसके डिमांड जोन पे, और अगेन इट वेंट अप, ठीक है। सो हम एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, मुझे वो न्यूज का कोई सेंस नहीं बनता है। 9 महीने के बाद सीईओ ज्वाइन करेगा, उसकी जो भी कोई पॉलिसीज, उसका वर्किंग स्टाइल, जो भी कुछ उसकी ग्रोथ या जो भी कुछ उसके रिजल्ट्स आना है वो उसके बाद में आएंगे। लेकिन स्टॉक ने आज 7 से 8% सडन ग्रोथ दे दिया। ऐसे नहीं होता है, वहां पर उसमें डिमांड आया, उसकी लेवल अचीव हुई और उसके बाद में ही स्टॉक नीचे आया। जब तक बिग मनी या स्मार्ट मनी, जिसको भी अभी बहुत से नाम है, आप कुछ भी नाम ले लो, उनके टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं, या कोई अन जो भी सडन शॉक्स होते हैं, जब सडन न्यूज होते हैं, वहां पे अगर वो इन्वेस्टेड है तो वो प्राइस नीचे नहीं आने देंगे, ठीक है। इसका मैं और एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं। 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट हुआ। ये साल का बजट मतलब बहुत अच्छा बजट था फॉर ऑल सेगमेंट, फॉर ऑल कंपनीज, सारे सेक्टर के लिए अच्छा बजट था, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। सिर्फ एक न्यूज गलत थी, वो न्यूज थी कि इंश्योरेंस सेगमेंट में जो 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसका जो रिटर्न आएगा वो टैक्स फ्री नहीं रहेगा, पहले वो टैक्स फ्री था, ठीक है। सेम डे स्टॉक 10% डाउन गया, लेकिन आप देखो स्टॉक कब से नीचे आ रहा था। आप कोई भी इंश्योरेंस सेगमेंट उठा लेना, ठीक है। दिस इज 17 जान, यहां से स्टॉक का प्राइस नीचे आना चालू हुआ, ठीक है। 1 फरवरी, ये है 1 फरवरी, ठीक है। यहाँ पर न्यूज आई, यहाँ पे बजट आया, ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर न्यूज आई, बट स्टॉक का प्राइस सडन नीचे आया 1 महीने पहले से। स्टॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में था 1 मंथ पहले से। सो जो भी पैसा अपना लगाता है, ठीक है, वो ब्लफ नहीं करता है दोस्तों। वो कोई न्यूज या कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट का वेट नहीं करता है उसके पैसों को कि वो बढ़ेगा कि कम होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिसेंट एक जस्ट टेक इट एज अ वेरी इजी, बुकी लोग भी हम लोग बोलते हैं कि मैच डिसाइड कर लेते हैं, वो भी उनका लॉस नहीं होने देते हैं। अगर बुकी उनका लॉस नहीं होने दे सकते हैं तो इन्वेस्टर कैसे होने देगा, ठीक है। सो दिमाग से ये कुछ भी जो मिथ्या या मिथ्स है, या कहीं आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, ठीक है, स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है। हमारा एनालिसिस कम होता है, हमारा प्राइस एक्शन, जो हम लोग जो प्राइस में स्टॉक को एंटर करते हैं वो रॉन्ग होता है, ठीक है। ये सट्टा नहीं है, इट्स अ प्योर मैथ्स, प्योर प्रोबेबिलिटी, प्योर डिमांड एंड सप्लाई चेन, ठीक है। ऐसे आपको देखना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ, आप जितने भी इंश्योरेंस सेगमेंट के स्टॉक है आप चेक कर लो वो कब से डाउन थे, ठीक है। अदानी के बारे में तो हर एक को पता होगा, 24 जैन को न्यूज आई, लेकिन अदानी के 6 स्टॉक्स थे, आप देख लो वो कब से डाउन चल रहे थे, वहां पर इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, ठीक है। सी अदानी के स्टॉक से एग्जिट सितंबर 2022 में ही आ गया था, ठीक है। अगेन उसमें एंटर आया ही नहीं, एंट्री आई नहीं, न्यूज आया 24 जैन को यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपका स्टॉक डाउनवर्ड था यहाँ से, उसने उसका जो भी कुछ टारगेट था वो टारगेट अचीव कर लिया, वहां से स्टॉक नीचे आया, एंड देन सी आप देखना, इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको ये सब चीज मैं जो बोल रहा हूँ उसमें अगर चेक करना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, आप सारे अदानी के स्टॉक्स देख लो, ठीक है। आप इंश्योरेंस के सारे स्टॉक्स देख लो। फ्रेंड्स बिलीव मी, कोई भी उसका पैसा ब्लफ नहीं करता है, वो तुक्के पे काम नहीं करता है कि कल को कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, कल कोई नेगेटिव न्यूज आ जाएगी तो मुझे 10% डाउन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है।
ये अगर ये होता था तो ये बुकी कहलाते थे, ये सट्टा कहलाते थे। ये इन्वेस्टमेंट है। हम इसको क्या बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ इन्वेस्टमेंट। सिर्फ आपको एनालिसिस करते आना चाहिए। आप आपका पैसा लगा रहे हो, आप कोई बिजनेस करोगे, आप कल को सीए की प्रैक्टिस करोगे, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, जस्ट क्लाइंट आके आपका काम नहीं हो जाता है, आप उसको टाइम देते हो, आप उसको और कुछ उसके जो भी कुछ टैक्स का काम करना है, जो भी आप उसका काम करके दोगे तो आप उसको टाइम दोगे। सो स्टॉक मार्केट में भी आपको, आपने राइट टाइम एंट्री किया है कि नहीं, स्टॉक का प्राइस क्या परफॉर्म कर रहा है, एटलीस्ट थोड़ा टाइम देके ये सब देखना जरूरी है, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी इसमें इन्वेस्ट है। ठीक है। सो आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के तरह ही देखना चाहिए। सो ये जो भी कुछ मिथ्या है, जितने भी लोग बोलते हैं कि मैंने स्टॉक लिया और उसका प्राइस गिरता ही गिरता है, कैसे पता चलता है पता नहीं। हमारे आपके टाइम पे तो पता नहीं, बट हमारे टाइम पे तो ये बहुत फेमस फ्रेज था, ये सेंटेंस 100% था। यार मैंने स्टॉक में एंट्री किया, मैंने स्टॉक बाय किया कि वहां से वो गिरता है, मैंने स्टॉक सेल किया कि वहां से उसका प्राइस बढ़ता है। एकदम फेमस सेंटेंस था ये मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, मैंने भी खुद ने ये मैं बोलता था। बट जैसे मैंने सीखता गया मार्केट, 2012 के बाद में मैंने ये बोलना बंद कर दिया। तो मेरी भी जर्नी ऐसी ही थी कि किसी ने बोला, मैंने एंट्री कर लिया, मेरे दादा ने बोला, चाचा ने बोला, मामा ने बोला, फ्रेंड ने बोला, कोई एनालिस्ट ने बोला, टीवी पे सुना, सोशल मीडिया पे सुना। ठीक है। ये स्टॉक बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूसली, लास्ट 6 मंथ से बढ़ रहा है, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऐसे आए, उसके रिजल्ट्स ऐसे आए, उसका बैलेंस शीट इतना अच्छा है। सब ठीक है, हमको हमारा पैसा, आप जो बिजनेस करते हो, किसी के बोलने पे बिजनेस करोगे या आपके खुद के मेहनत पे, एनालिसिस पे, आपके दिमाग से करोगे। स्टॉक मार्केट में भी आप पैसा ही लगा रहे हो, तो वो भी आपको इन्वेस्टमेंट आपके एनालिसिस के हिसाब से ही होना चाहिए, किसी और के कहने पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का मिथ्या था जो मुझे आपको कन्वे करना था कि स्टॉक मार्केट मतलब सट्टा नहीं है, इसमें रैंडम स्टॉक के प्राइसेस नहीं जाते, मतलब वर्क करते हैं। ठीक है, ऊपर या नीचे। जब तक स्मार्ट मनी या बिग इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टेड है, स्टॉक का प्राइस नहीं गिरेगा। ठीक है। सो डिमांड एंड सप्लाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी तक मेरे लेक्चर में कम से कम 20 या 25 बार डिमांड सप्लाई बोला। बिलीव मी फ्रेंड्स, वही सब वर्क करता है मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट्स में। ठीक है। किसी को यहाँ पर कोई क्वेरी क्वेश्चंस है तो मैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ले सकते हैं और फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। Sir, there was a um, Yeah. sir, there was a question from Mayuri Jain. She asked that can you please once again give example of CDSL? CDSL पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है। ओके। यस। क्या इसमें क्या क्वेश्चन है, क्या इसका एग्जांपल, क्या मुझे बताना है इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है? She asked you to give example of CDSL. ये सीडीएसएल Is का that एग्जांपल है। उसमें आपको क्या चाहिए कि एंट्री कहाँ पे होना चाहिए था, एग्जिट कहाँ होना चाहिए था, किस पैटर्न से होना चाहिए था, या कुछ न्यूज Mayuri? फ्लोट किया? Okay, Mayuri, can you please raise your hand and ask this specific question? Okay, sir, she is asking where to enter and where to exit. बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो गया। ओके, ठीक है। सो उसके लिए क्या है ना, देखो हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है, फिर भी मैं जितना एक्सप्लेन करना कर सकता हूँ उतना मैं आपको करता हूँ, क्योंकि उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे पूरा टेक्निकल एनालिसिस ही वो होता है कि कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, बट मैं आपको कुछ थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल मतलब तो आपका बाइंग हो गया, रेड कैंडल मतलब प्राइस नीचे आ रहा है तो सेलिंग हो गया। ठीक है। जब भी कहीं आपको, ठीक है, इस तरह से पैटर्न दिखता है, ठीक है, या ये ऐसे पैटर्न्स दिखते हैं, ठीक है, तो आप एग्जिट ले लो। अब आप बोलोगे कि सर ये तो चार्ट पे हमको भी दिखता है, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करें? तो इस पैटर्न्स को, कैंडल स्टिक्स के वर्डिंग्स होते हैं कि इसको बेरिश पैटर्न बोलते हैं। ठीक है। तो इनसाइड कैंडल वगैरह बोलते हैं। तो अब इसके पीछे की मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। पैटर्न क्या है वो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने से अच्छा है कि मैं आपको इसका साइकोलॉजी बताता हूँ।
क्या हो रहा है यहाँ पे बाइंग आ रहा है, ठीक है। सी साइकोलॉजी समझिए, बायर और सेलर का, डिमांड एंड सप्लाई का। तो यहाँ पर बाइंग आ रहा है, बट ऑल ऑफ द सडन कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। स्टॉक पहले से नीचे आ रहा था, ठीक है। बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स ने एंट्री लिया, स्मार्ट मनी ने यहाँ पे उसका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। वहां से जिसका प्राइस आते जा रहा है, रिटेलर यहाँ पर एग्जिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो पुराना प्राइस है बाइंग का, ठीक है, वो फियरफुल है कि प्राइस ऊपर से नीचे आया है, मेरा प्राइस अभी आ रहा है, या तो मैं मिनिमम लॉस पे हूँ या मिनिमम प्रॉफिट में हूँ, मैं मेरा एग्जिट ले लेता हूँ। यहाँ से वो एग्जिट लेता है, ठीक है। यहाँ तक प्राइस नीचे आने के बाद अगेन प्राइस ऊपर जाती है। तो हमारे इसमें हम इसको बाइंग पैटर्न बोलते हैं, यहाँ पर बाइंग होना चाहिए था, ठीक है। इट्स अ डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंट्री लेना है, यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अगर प्राइस इसके नीचे जाती है तो आपको एग्जिट हो जाना है। प्राइस जब तक इसके नीचे नहीं आती है तब तक आपको स्टॉक में बने रहना है। और फिर उसको कैसे हम लोग ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस, क्योंकि आज ना 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले बाद में प्राइस इसके नीचे आएगी, तो क्या हम लोग उतने टाइम तक उसमें इन्वेस्टेड ही रहेंगे, हम लोग प्रॉफिट कभी बुक ही नहीं करेंगे? ऐसे नहीं होता है। सो उसको ट्रेल करते हुए आपको जाना है, और जहां पर आपको सेलिंग या सप्लाई जोन आते हैं, जैसे आपने मेरे बहुत से स्टॉक्स में ना यहाँ पे ऐसे लाइंस देखे होंगे, वो जोन में आपको एग्जिट लेना है। वो पूरा एनालिसिस का पार्ट है कोर्स का, तो इसको 1 मंथ ड्यूरेशन है, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जा सकता हूँ, लेकिन जितना भी होता है मैं बताता हूँ। सो ऐसे कुछ पैटर्न्स बनते हैं जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या लोग अपना पोजीशन एग्जिट लेते हैं, वहां पर हमको भी एग्जिट करना है। सी मार्केट में है ना, मैं एक आपको बहुत सिंपल फंडा बताता हूँ, हमको सिर्फ स्मार्ट मनी को शैडो करना है, ठीक है। शैडो करना मतलब क्या है? हमको उनके साथ ही काम करना है, मतलब जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही हमें करना है। अब ये कैसे होगा? वो तो हमको कॉल करके नहीं बताएगा स्मार्ट मनी की, बॉस मैं अभी एंट्री ले रहा हूँ, तुम भी एंट्री कर लो, या बॉस मैं अभी एग्जिट कर ले रहा हूँ, या ऑपरेटर वर्ड आपने सुना होगा, वो तो हमको नहीं बताएगा। लेकिन वो हमको नहीं भी बताए तो भी हमको चार्ट पर ये जो वॉल्यूम्स है, ठीक है, ये जो प्राइस एक्शन है, ये बताता है कि आगे या तो कोई बैड न्यूज आएगा या स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, हमको वहां पर एग्जिट ले लेना है, या वहां पर वो वैल्यूएशन पे, वो प्राइस पे हमको वो स्टॉक में एंट्री नहीं करनी है। फेयर इनफ, दोनों पॉइंट वैलिड है। या तो आप इन्वेस्टेड हो तो एग्जिट लो, या तो आप री एंटर मत करो, या फ्रेश एंट्री मत करो। अब आपका जो क्वेश्चन था मयूरी, वो बहुत ही स्पेसिफिक था कि कैसे एंट्री करें और कैसे एग्जिट करें। तो उसके चार्ट पैटर्न्स होते हैं बहुत सारे, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं बहुत सारे, वो थोड़ा लेंदी पार्ट है, थोड़ा बड़ा पार्ट है, तो मैं बहुत इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितना भी है मैं आपको बता रहा हूँ। एक जोन्स बनते हैं कि बार बार वो प्राइस पे आके एंट्री हुआ है, या वो प्राइस पे आके स्टॉक ऊपर गया है, ठीक है। तो वहां पर हमने एंट्री लेना चाहिए। जैसे ये स्टॉक के बारे में अगर आप देखोगे, तो ये देखिए यहाँ पर है ना, इसका प्रीवियसली सपोर्ट था, ठीक है। कहाँ सपोर्ट था? सी यहाँ पर इसका सपोर्ट था, ठीक है। सो रैंडमली प्राइस यहाँ पर आकर ऊपर गई ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, मैंने तो पीछे से उसको एनालाइज किया कि कहाँ पर उसका सपोर्ट था, अब यहीं पर क्यों सपोर्ट था, यहाँ पर क्यों नहीं था, यहाँ पर क्यों नहीं था, यहाँ पर क्यों नहीं था, वो सब लर्निंग्स पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस के। बट आप देखो, ये सपोर्ट यहाँ पर भी वर्क किया, यहाँ से भी बाउंस किया स्टॉक ने, ठीक है। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, अच्छा खासा नीचे आया, और आज यहाँ पर अभी ये लाइव कैंडल्स है, ठीक है, लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज ही यहाँ पे नीचे देखो आप, ये वॉल्यूम स्टॉक है, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा आया है, और ये ब्रेक कर रहा है। जो पहले सपोर्ट था, मतलब जो पहले डिमांड जोन था, स्टॉक का प्राइस नीचे आने के बाद वो सप्लाई जोन हो गया, मतलब वो रेजिस्टेंस बन गया है। यहाँ पर देखिए नीचे आने के बाद उसने यहाँ पे ट्राई किया, सक्सेसफुल नहीं हुआ ऊपर जाने के लिए,
कितनी बार ट्राई कर रहा है, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, पूरा नीचे गया, वहां से वापस ये जोन में उसने ब्रेकआउट का ट्राई किया, यहाँ पर ब्रेकआउट का ट्राई किया, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट स्टॉक को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, यानी कि क्या है, जो भी यहाँ पर अपना बाइंग लिया है, स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो लोग अब इसको ब्रेकआउट दे रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर ना बाइंग ना सेलिंग कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि ये बाइंग के लिए है, ठीक है, इट्स एन स्टडी पर्पस। मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है, अगर ये लेवल 1010 या 1011 सीडीएसएल होल्ड करता है तो वो ऊपर जाएगा। उसका टारगेट होगा पहला, एकदम नियरेस्ट टारगेट होगा उसका 1070 ट्रेडर के लिए, और 1165 या 1160 सेकंड, एंड फिर एक एक टारगेट ऊपर बढ़ते जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप उसको एनालाइज कर सकते हो। बाकी इसमें बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स है, सब कुछ है, मैं वो सब चीज नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो सब लैगिंग है, मतलब प्राइस एक्शन पहले होता है, इंडिकेटर्स बाद में वो करते हैं। सो प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम, यही दो चीज सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। टेक्निकल एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, अदर एस्पेक्ट से नहीं, ठीक है। सो ये आपका, होप कि मैंने कुछ आंसर दिया होगा कि कहाँ एंट्री एग्जिट। एनीथिंग एल्स? Oh, yes, sir. There was one more question from Pranav Patil. He asked whether being in capital market means being in CDSL as it is direct proportion. कैसे? Should I पर्टिकुलर pardon सीडी, the question? यस यस, पर्टिकुलर सीडीएसएल ही कैश मार्केट में रहेगा तो कैसे, मतलब मैं समझा नहीं। सीडीएसएल क्या करता है? Cash market, capital market. हाँ, कैपिटल मार्केट में, मतलब कैसे, क्या सीडीएसएल क्या करता है? सीडीएसएल इज अ डिपॉजिटरी, इट्स अ लॉकर। क्या करता है, हम लोग जो शेयर्स बाय करते हैं वो शेयर सीडीएसएल या एनएसडीएल दोनों में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। वो शेयर्स वहां पर डिपॉजिट होते हैं, दैट मीन्स क्या, कि वो जो भी आपसे उसका कुछ चार्जेस लेते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, राइट। जैसे जैसे शेयर्स परचेज सेल होते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ डीमैट शेयर्स अकाउंट्स ओपन होते जाएंगे, वैसे वैसे उसका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, राइट। तो अभी कोरोना के बाद में सीडीएसएल का प्राइस या बीएससी का प्राइस या अनलिस्टेड में एनएससी का प्राइस क्यों इतना बूम कर रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। अब ऐसा था तो फिर ये क्यों नीचे आए? क्योंकि कोरोना के बाद जब काम लोगों का स्टार्ट हुआ, वहां पर बहुत से लोग पैसिव हो गए या इनएक्टिव हो गए, या वहां से लोगों ने काम करना कम कर दिया, ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हुए, ठीक है। इसके लिए इसका प्राइस, इसका प्रॉफिट कम हुआ और ये प्राइस नीचे डाउन आते गया, ठीक है। एनीथिंग एल्स प्रणव इसमें? हाँ प्रणव, वो जो CWIP वगैरह जो कंपोनेंट आप फिक्स एसेट्स का बता रहे हो, वो आप फ्यूचर सीए हो, सो आपको वो देखना है। मेरे लिए तो इतना सफिशिएंट है कि यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन बोल रहा है कि एग्जिट कर देना है, यहाँ पे मुझे बना रहना है। सो आप, वो मैं आपसे सीख लूंगा बैलेंस शीट कैसे रीड करना है। एनीथिंग एल्स? Oh, okay, sir. I think as of now there are no more questions. चैतन्य गोदवानी, यस वो है, मैं उसके डिटेल्स से आपके फोरम से उसको मिल जाएगा, मेरे क्लासेस रहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हाँ, मैंने बहुत से जो आपके इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट, पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट के जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की कुछ मिथ्याज होती है या कैसे होना चाहिए,
या क्यों होना चाहिए, कब होना चाहिए, ये मैक्सिमम पॉइंट्स मैं कवर कर रहा हूँ। और बिलीव मी, मार्केट रिलेटेड बहुत ही निगेटिव या बहुत मिथ्स जो है वो रिटेलर्स को बताए जाते हैं। ठीक है, कितने लोग, या फिर आपका भी एज है या आपके फैमिलीज में होगा, या आपने सुना होगा कि इसको इतना लॉस हो गया, उसको इतना हो गया, या कुछ आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने मार्केट में पैसा बहुत बनाया। ठीक है, सो मार्केट प्योरली डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करता है। ये कोई भी इसमें सट्टा या लॉसेस वगैरह ये सब चीजें हैं, ये आपकी गलतियों की वजह से होता है। कोई भी अपना पैसा रैंडमली इन्वेस्ट नहीं करता है विदाउट उसका स्टडी करा, मतलब विदाउट स्टडी। ठीक है। सो अब हर कंपनी में अब बैलेंस शीट कैसे होता है, या बैलेंस शीट कैसे रीड करते हैं, या बैलेंस शीट कैसे होती है, ये सीएस को ज़्यादा पता है वो। और आपको हर कंपनी की बैलेंस शीट सही है या गलत है ये भी हमें नहीं पता है, क्योंकि ऐसे भी कुछ आए हैं सामने केसेस की जहाँ पे बैलेंस शीट मैनिपुलेट की है। तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि वो स्टॉक सही है कि गलत है? तो देर इज द बेस्ट वे कि उसका प्राइस एक्शन टेक्निकल हम लोग उसको रीड कर ले, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं छुपा सकते। यहाँ पे ना वॉल्यूम छुपा सकते हैं ना प्राइस छुपा सकते हैं। एक भी शेयर बाय या सेल हुआ तो वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटर कुछ भी छुपा नहीं सकता है। बैलेंस शीट मैनिपुलेट है या नहीं है उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर हम प्राइस एक्शन सीखते हैं तो। ठीक है, अगर फंडामेंटल जो आप लोगों के करिकुलम में ही है, बैलेंस शीट के जो रीड करना है वो, और कंपनीज के बारे में जो करना है उसके साथ अगर आप प्राइस एक्शन सीखते हो तो वो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। आप डबल आपके पास दो दो एनालिसिस के साथ, डबल एनालिसिस के साथ आप अच्छे से काम कर सकते हो कॉन्फिडेंटली एकदम। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? I think no, sir. There are no more questions as of now. ठीक है, तो विल मूव फॉरवर्ड। Yes. अब ठीक है, ये सब जो टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट्स है या जो स्टडीज होता है उसके बारे में ये सब कुछ दिया है, तो माइट भी ये सेशन में वो अलाउ है नहीं है, आई डोंट नो। तो बट ये काइंड ऑफ कुछ टेक्निकल एनालिसिस होता है और इस पे हम लोग उसको रीड करते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, दिस इज फॉर आवर सर्विसेज कि हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं। हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करके देते हैं, शेयर मार्केट की जो भी कुछ सर्विसेज है हम लोग सब शेयर करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेज, ऑप्शंस का ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड, एसआईपी, इंश्योरेंसेस, और स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के जो भी सीखना चाहता है, जिसको फर्दर इसको एक्सप्लोर करना है तो उसके क्लासेस भी हम लोग लेते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है या कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। Sir, there was one question from Sumit Jain. He asked, Mhm. is super trend analysis good? एनालिसिस सुपर ट्रेंड का आप कर सकते हो, आप उसको किस वे से करते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा दूँ, ठीक है, ये मैंने सुपर ट्रेंड लगा दिया। ठीक है, अब ये मैं वीकली एनालिसिस ले रहा हूँ तो ये मुझे एग्जिट दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा ये इतना प्रॉफिट लेके जा रहा है। अब मैं इसका अगर पैरामीटर्स चेंज करता हूँ और इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में बनाता हूँ, ठीक है, तो वो अर्ली एंट्री और एग्जिट दे देगा। सी फ्रेंड्स, इंडिकेटर्स कुछ हद तक, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर्स गलत है, यस, कुछ हद तक यानी कहीं तक वो अच्छे से वर्क करते हैं। बट अब जैसे हमको एंट्री यहाँ करना था, लेकिन अगर हम सुपर ट्रेंड फॉलो करें तो हमको एंट्री यहाँ मिलती है। सो ये जो पोर्शन था, ठीक है, ये इतना लेट एंट्री मिला, इतना लेट एग्जिट मिला, राइट। सो इसको अगर मैं चेंज करूँ, इसके पैरामीटर्स अगर कम कर दूँ, ठीक है, तो वो मुझे अर्ली एंट्री देगा। लेकिन अगर स्टॉक, उसका प्राइस अगर वो एक रेंज बाउंड में है, एक नैरो रेंज में है, तो वो मुझे बार बार एंट्री और एग्जिट देगा, तो वो मुझे कियोस और मैस कर देगा।
ठीक है। तो यस, आप RSI बोलो या सुपर ट्रेंड बोलो या मूविंग एवरेजेस बोलो या ATR बोलो, ये सबका सर्टन लिमिट तक आप उसका यूज कर सकते हो। ये क्या हो गया, अगर ये आपकी मूवी है तो ये आपके साइड हीरोज है उसमें, ठीक है, जो आपको आपके डिसीजन को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि यस यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। ये आपको एडिशनल कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ आप सही डायरेक्शन में हो, मतलब बुलिश हो या बेरिश हो तो आप सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो, ठीक है। बट मैं अगर सजेस्ट करूं या मैं अगर बोलूं तो मेरे लिए ये प्लेन चार्ट जो है यही सबसे बेस्ट है। इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। ये मुझे कहीं पर भी फॉल्स सिग्नल जनरेट नहीं कराएगा, क्योंकि ये प्योर प्राइस एक्शन है, प्योर डिमांड सप्लाई है, ठीक है। मार्केट में भी ऐसे ही होता है। जैसे आप कभी दिवाली का कोई फेस्टिवल है या और कोई फेस्टिवल है जहां पर, या फिर आपके मॉल में सेल शुरू है, तो वहां पे हम लोग बाइंग करते हैं, डिमांड बढ़ता है। जहां पर हमको एक शर्ट या एक पैंट लेना होता है वहां पे हम ऑफर के चलते 4 शर्ट 4 पैंट लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ते जाता है। जैसे डिमांड बढ़ेगा उसका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। स्टॉक के रिलेटेड बात करें तो उसका प्राइस बढ़ते जाएगा। सो जो हमारे डे टू डे मार्केट में वर्क करता है सेम स्टॉक मार्केट में भी वर्क करता है। तो फिर स्टॉक मार्केट कॉम्प्लिकेटेड या उसका वॉल्यूम एनालिसिस कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है। आप अगर मॉल से कोई एक शर्ट लेके आए या कोई किराना दुकान से या सुपर शॉपी से 1 kg शुगर लेके आए हो, ठीक है, आप ऐसा करोगे क्या कि वो शुगर आपने आपके फ्रेंड को बेचा, फिर वो और किसी को बेचेगा, फिर वो और किसी को बेचेगा, फिर वो और किसी को बेचेगा? ऐसे नहीं होता है। एक शर्ट हम बार बार किसी को बेचते नहीं है, हम उसको कंज्यूम करते हैं, मतलब हम उसका यूज कर लेते हैं, तो हम उसके एंड यूजर हो गए। स्टॉक मार्केट में ऐसे नहीं होता है। स्टॉक क्या करते हो, आप खरीदते हो तो कोई बेचता है, आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी कुछ होगा आप क्या करोगे, आप बेचोगे तो और कोई खरीदेगा, और कोई लेगा और कोई बेचेगा। सो वो चेन बनते जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स 100, 100 शेयर्स आपने खरीदे, किसी ने बेचे, आपने बेचे और कोई खरीदेगा, और कोई खरीदेगा तो और कोई बेचेगा। सो अगर ये ट्रांजेक्शन 100 टाइम्स होते गया तो वॉल्यूम हो गया 10,000 बाइंग का, 10,000 सेलिंग का, ठीक है। सो वॉल्यूम बिकम्स 20,000, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स 100। आपका जो डेली डे टू डे मार्केट है वो इस तरह से वर्क नहीं करता है। आपने अगर कोई सुपर शॉपी से एक चीज लेके आया, एक कोई शुगर लेके आओ या बिस्किट का कोई पैकेट लेके आओ या मॉल से कोई शर्ट या कपड़े लेके आयो, तो आप उसको यूज कर लेते हो, आप उसको बेचते नहीं हो। उस पर ट्रेडिंग नहीं होता है, वो 1 kg शुगर पे या एक पैकेट बिस्किट पे या एक शर्ट पे, उसको 100 बार आप बेचोगे खरीदोगे नहीं। बट स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स के साथ ये करते हो, ठीक है। शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। हमारा डे टू डे मार्केट के जो भी एसेट्स है, जो भी चीजें हैं, वो एंड यूजर कंज्यूम करता है उसको, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम कॉम्प्लेक्स होता है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी ही मार्केट का प्राइस एक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके उसका एनालिसिस ये करती है। बाकी जो बेसिक्स है डिमांड एंड सप्लाई का फंडा, वो सेम एज अपने डे टू डे मार्केट के जैसा है, ठीक है। Yes, sir. It's clear. अगर आपको और कोई क्वेरी है, जैसे कि शायद आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन पूछूं या नहीं पूछूं, क्वेश्चन राइट है रॉन्ग है, या फिर आपको अभी कुछ नहीं ध्यान में आ रहा है, बाद में आपको पूछना है, तो आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए। यू कैन क्वेरी एनी टाइम, ठीक है। सो मेरा टॉपिक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड था। तो आई होप कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट क्यों, कब, कैसे करना चाहिए, स्टॉक मार्केट और बाकी एसेट्स क्या होते हैं, उस पर मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किया और हर एक का इम्पोर्टेंस, प्रोज एंड कॉन्स बताया, ठीक है। तो मार्केट का भी ऐसे है, मार्केट के बारे में जो भी कुछ मिथ्स है, जो भी कोई मिथ्या है कि मार्केट में लॉस होता है या मार्केट सट्टा है या ऐसे है, जो मैंने आपको बताया कि बिलीव मी फ्रेंड्स, मार्केट बिल्कुल भी सट्टा या अनप्रेडिक्टेबल या न्यूज बेस्ड सबसे मेन है। आपको सब लोग बोलते हैं कि मार्केट न्यूज पे काम करता है, मार्केट 99.99%
न्यूज पे काम नहीं करता है, ठीक है। ये मैं दोनों साइड से, यानी कि जब निगेटिव न्यूज आती है, मार्केट नीचे जाता है, तब भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए कि पहले से ही स्टॉक डाउन चल रहा था, मतलब पहले से ही वो एग्जिट आपको दे रहा था, ठीक है। ऐसे आपने शायद DHFL और यस बैंक्स वगैरह इनकी किस्से सुने हैं, नहीं सुने हैं, आई डोंट नो, ठीक है। और एक लॉन्ग टर्म की किस्सा था कि अगर मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, जैसे कोई स्टोरीज आपने सुनी होगी कि विप्रो या रिलायंस, ठीक है। विप्रो अगर 40 साल 1981 में अगर कोई 1000 रुपये 10,000 इन्वेस्ट करता था, तो आज उसके 500 करोड़ 700 करोड़ हो जाते थे। आपके पास तब 10,000 नहीं था, तो आपने 1000 रुपये 100 रुपये इन्वेस्ट करते थे, तो उसके अपने अपने हिस्से होते हैं। अब ये 10 शेयर्स के नाम हर कोई गिनाता है, बट जो 90 शेयर्स डूब गए उसका कोई कुछ नहीं बोलता है उसके बारे में, ठीक है। बहुत सी कंपनी वाइप आउट हो गई, बहुत से कंपनी का नाम भी नहीं पता, बहुत से लोगों के पास उसके पेपर शेयर्स है लेकिन कंपनी का कोई आता पता ही नहीं है, बहुत सी कंपनी बंद हो गई, बैंकरप्ट हो गई, ठीक है। लोगों का बहुत अच्छा खासा पैसा लॉस हो गया। उसका रीज़न यही है कि पब्लिक राइट टाइम एग्जिट नहीं लेती है। सो मैंने आपको वो भी बताया कि आपका लॉन्ग टर्म का एक्चुअल लॉन्ग टर्म क्या होना चाहिए। आप आपके इन्वेस्टमेंट को लेके भूल जाओ वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब पर्टिकुलर शेयर्स में आप बार बार इन्वेस्ट करते रहो, एग्जिट एंट्री और एग्जिट लेते रहो, क्योंकि वी नेवर नो कि स्टॉक कब नीचे चला जाएगा और कितने टाइम तक नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो एनीथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, कोई क्वेश्चन है, एनालिसिस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप अभी या बाद में टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के बारे में आपको कुछ पूछना होगा, इंक्वायरी करनी होगी, तो आप ये नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Okay, sir. So I think there are no more further questions related to our today's topic. And if they have questions, they can ask you on your number, right? ये यहाँ पर वो, हाँ, मेरे नंबर पे पूछ सकते हो। ये मेरे स्लाइड, आपको मेरा स्लाइड दिख रहा है क्या? Yes, sir. तो किसी दीप कोई Like of the PPT. हाँ, तो वहाँ पे मेरा नंबर है, नंबर नॉट विजिबल बोल रहे हैं, तो Number is not visible. PPT पे नहीं दिख रहा है क्या? सर No. अपना ट्रेडिंग व्यू का ही स्लाइड दिख रहा है सर। ओह सॉरी 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 फ्रेंड्स। ठीक है, विजिबल। विजिबल हो गया। हाँ सर विजिबल। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो मेरा ये नंबर, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो नोट डाउन हो गया सबका? विजिबल दिख रहा है ना PPT आप लोगों को अभी? क्योंकि बार बार Yes, अभी भी sir. लोग पब्लिक पूछ रहा है कि नंबर शेयर PPT ना विजिबल। Oh, yes, sir. The PPT is visible. ओके, so this is my numbers and contact details. Okay, Yes, sir. Thank you so much, sir, for such a wonderful and informative session. All the basics of stock markets are very well clear. So thank you so much. thank you, thanks for giving me a chance. Okay. Now I would yes, okay. yes Kinjal, please proceed. Okay. Now I will request Yashika Jain, Secretary of Surat Vikasa, to propose the vote of thanks for today's session.
Hello everyone, am I audible? Yes, Yashika, you are audible. First of all, this is Yashika Jain, Secretary, Surat branch of Picasa. And I would really like to congratulate you all for taking this first step towards financial freedom, because thinking of investing is the way towards the financial freedom. And summing up today's session, I really want to tell that हमेशा बचपन से सबको लगा और अपने पेरेंट्स को सुना भी होगा कि यार प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना है, काश इतने ज्यादा पैसे होते तो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाते, या फिर गोल्ड इज अ सेफर ऑप्शन, तो हमारे पास थोड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता तो हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर पाते. बट आई गेस आज के सेशन के बाद अब सबका वो टेंशन दूर हो गया होगा, बिकॉज जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अब मिनिमम अमाउंट ऑफ 50 रुपीज इवन अगर आप रियल एस्टेट की REITs में इन्वेस्ट करो, तो you can invest in the real estate market, you can gain the benefits of real estate market, and you can even track the real estate market. आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू गोल्ड ETFs, क्योंकि अब तो गोल्ड में भी 50 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हो. तो सबको अपनी यूथ एज में अब ये नहीं लगेगा कि यार अभी तो हम इतना ज्यादा कमाते ही नहीं है, तो हम इतना ज्यादा इन्वेस्ट कैसे करेंगे. और आपके पास फ्यूचर में रियल एस्टेट के थ्रू और गोल्ड के थ्रू एंड इवन इक्विटी शेयर्स के थ्रू वेल्थ जनरेट हो सकती है. तो अब हम ये टेंशन तो नहीं करेंगे कि यार इन्वेस्ट तो करना था पर पैसे नहीं थे या कम पैसे थे, क्योंकि अब हम सबके पास इतना अमाउंट तो होता ही है. अदर देन दिस, Yashika, you are not audible. Sorry for the everyone, I really want to thank Bharat sir for enlightening today's youth regarding the financial investment, because अब सबको हम इस competitive world में अब सबको जरूरत पड़ चुकी है that we should be financially free till our age of 30s or 40s, right? So I really want to also thank our participants that they thought of moving towards the path of financial freedom, because when you think, then you start. So thank you participants for being such a great audience today. Now, I would really want to thank Pune branch of Picasa for organizing such an event and for collaborating with us on such a great topic. Thank you, Pune branch of Picasa. You really worked hard for this event, and this event was really a huge success. We are really moving towards the part of making change in CA students' mindset. Thank you so much, everyone. Yashika, you are not audible. Maybe she left. Yeah, Hi. she muted. No, I'm there. What happened, Kinjal? You were not audible at last. I guess it was maybe a network issue, but it was. Thank you, Yashika. Yes. Okay, Yeah, thank thank you. you so much for, like, we'll definitely want to collaborate with you in future. Same, likewise, Yashika. Thank you so much, and thank you, Madhvik, for joining, Secretary Pune Vikasa. Thank you, Kinjal, for being an amazing MOC pro. Thank you, Bharat sir, for being there throughout the session, for guiding the audience, and thank you, Shwetani ma'am, for coordinating technically to us. Yes, Nya, thanks for joining from Pune Vikasa. That's all from our end, guys. We see you tomorrow. Kinjal, you can please continue. Yes. So thank you so much everyone for being a wonderful audience. We will be glad to see you friends for our tomorrow's session of Investment Ki Pathshala on topic all about candlestick patterns and strategies. Thank you so much.